ये DBAG कर रहा है। DBAG एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फाइनेंशियल स्पॉन्सर है, प्राइवेट इक्विटी कंपनी है। उन्होंने अभी 6 साल फॉर्मुलर ग्रुप में दे हैव जस्ट फिनिश्ड 6 years, so after that 6-year period they are looking to monetize about 25% stake. But please don't look at this stake sale as an individual thing. You have to understand that DBAG has sold GMM Pfaudler, the Pfaudler international business, for a very lucrative valuation. So हमारा जो international operations we had bought few months ago, we got that at an equity value of $50.4 million compared to the total revenue of the international business, which is $175 million. So part of that transaction, since that transaction, that acquisition will be accretive for the shareholders of GMM Pfaudler, they were going to monetize some of their stake here in India in any case. अपना जो फैमिली का स्टेक है, we are only selling 2% and all the proceeds of that selling will go into the international business. We as a family are buying 26% of the international business to show our commitment that we believe in the business, we can turn around the business and all the improvements will flow into GMM Pfaudler. तो कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, आउटलुक है, ऑर्डर बुक है, हमारे जो इंडस्ट्रीज जो हम लोग सर्व करते हैं, केमिकल और फार्मा, उसमें भी टेलविंड्स, there are a lot of tailwinds. So from a business standpoint, there is no change. And like you rightly said, many people are asking about discount and why was this price. We had to do a price, the discovery, the kind of investors that we are going to bring in and have already subscribed. And by the way, our OFS was subscribed at 120% on the first day and 80%. So positive response in spite of the global economic the conditions, and very high quality long-term investors have come in. They believe in the GMM Pfaudler story. They believe in the long-term success of the company. We have US funds coming in, and we have top Indian mutual funds also that are going to come in. So I don't see any change in the fundamentals of the business. जी पटेल साहब, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी बेहतरीन है और हमने खुद ने हमारी इंटरनल रिसर्च के बेसिस पर आपकी कंपनी को रिकमेंडेशन किया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखकर उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं सवाल मुश्किल पूछ रहा हूँ तो प्लीज़ माइंड मत कीजिए, क्योंकि हम खुद आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को पसंद करते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन सर, क्या इतनी पहली चीज़ तो ये कि जो मुझे समझ है, आपके इंटरनेशनल बिजनेस को खरीदने के लिए जो पैसों की जरूरत है वो काफी कम है, जितनी आपने स्टेक बेचने की बात कही ऑफर फॉर सेल में। और दूसरी बात, रिटेल इन्वेस्टर इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि इतनी बढ़िया कंपनी इतने ज्यादा डिस्काउंट पे क्यों बेची जा रही है। क्या कुछ ऐसा है जो उन्हें नहीं पता या उन्हें समझ नहीं आ रहा? तो इसमें जो हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है, अभी हम लोग फॉडलर के साथ अभी 30 साल हो गए हमारे, तो हमारी जो नॉलेज है कंपनी की, प्रोडक्ट की, लोगो की, एम्प्लॉइज की, वी हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द बिजनेस, so we know exactly what we need to do to turn around the business. You know, Indian companies have not been very successful when they have gone out and purchased international businesses, but hopefully we'll be able to reverse this trend, because one is that we understand the business so well, and two, we have a very low cost and very high efficient operations here in India, which we can use to cater to the rest of the world. So हमारा जो plan है is to really look at India as a low cost sourcing opportunity. There is an arbitrage, significant arbitrage, because of the low cost here in India. So that is something that we want to build on. We also believe by joining hands, we can improve our reach globally. India always had restrictions in terms of exports, in terms of where we could go and sell our products. Now with GMM Pfaudler becoming the ultimate holding company, there are पटेल साहब माफ कीजिएगा, पटेल साहब माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, पटेल साहब माफ कीजिएगा, लेकिन इसमें कोई डाउट ही नहीं है, न मुझे है न आपके शेयर होल्डर्स को, कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी बेहतरीन है। और मैं आपके फेस पर भी कह रहा हूँ, आपके पीछे भी कहता हूँ कि बहुत बढ़िया कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप बहुत बढ़िया कारोबार कर रहे हैं। मेरा सवाल ये कि क्या जितनी स्टेक सेल की, जिस अमाउंट की सेल की, क्या वाकई में आपको इंटरनेशनल ऑपरेशंस जो आपने एक्वायर किए हैं, जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत है, क्या वो मैच होते हैं दोनों, या उससे कहीं ज्यादा अमाउंट का आपने स्टेक सेल किया? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, हम सो आई विल एक्सप्लेन टू यू, दिस इज वेरी क्लियर। हमारा जो स्टेक सेल जो हो रहा है 2% का, उसका हम लोग का अबाउट $14 million आएगा, एंड अबाउट $13.2 million विल बी इन्वेस्टेड इनटू द SPV. वी आर acquiring 26% of
$50.4 million is about 13.2. उसके ऊपर हमारे जो fees रहेंगे और जो all the advisors and things like that, that is why we have sold about 14 million. So all the proceeds are going. But DBAG का जो stake sale हुआ है, उनका proceeds will go back to them 100% because they are a financial private equity investor and they are monetizing their stake. But as a family, we are committed to the long term of the business. We are long term investors, and that's why we went out and acquired the foreign entity in the first place. परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। और सर हम इस बात की तारीफ भी करते हैं, बहुत कम इंडियन प्रमोटर्स ऐसे हैं जो अपने फॉरेन होल्डिंग कंपनी के या फॉरेन प्रमोटर की स्टेक खरीद लें और बड़ा एक्सपांड करें। मैं उसके लिए आपको बधाई भी देना चाहता हूं। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल मेरा जो है, डीबीएजी को इतनी क्या जल्दबाजी है या ऐसी क्या है कि वो इतनी बड़ी स्टेक इतने बड़े डिस्काउंट पर बेचकर जा रहे हैं, जबकि आपकी कंपनी बेहद शानदार है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जैसा आप एकदम खुलकर कह भी रहे हैं। तो क्या वो आराम से नहीं बेच सकते थे, कोई इंतजार नहीं कर सकते थे? इतनी जल्दबाजी है और इतने नीचे दामों पर क्यों? राइट, सो आई थिंक इनका तो अभी 6 साल फॉडलर में हो गया, 6 years हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। आपको मालूम भी होगा कि ज्यादा करके प्राइवेट इक्विटी 5 साल के अंदर बेच देते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव वेटेड फॉर 6 years, दे हैव ओनली सोल्ड 25%. और देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू आल्सो मेंशन टू यू एंड टू योर व्यूअर्स. Now, as part of the agreement, both promoters, DBAG and Patel family are locked in for a period of 3 years. So there is no further selling of any shares. Okay. There is no dilution. Now it is time to put our heads down, work hard and create value. So DBAG का जो 6 साल हो गया, उसके बाद they want to monetize some stake, but balance stake they will monetize only after 3 to 4 years now. ओके, वंडरफुल। ये एक बहुत अच्छी बात जो कही और जो हेडलाइन भी है, जो आप सब लोग अच्छे से नोट कर लें। पटेल साहब जो कह रहे हैं वो कि अगले 3 साल तक कोई फ्रेश इक्विटी बिकने के लिए नहीं आएगी प्रमोटर्स की तरफ से या डीबीआईजी की तरफ से। तो ये निश्चिंत रहे, नहीं तो कई बार लोगों को ये डर रहता है कि अभी बेचे आए फिर और बेचने आएंगे तो क्या। तो कम से कम 3 साल के लिए अब ये शेयर लॉक इन में है। पटेल साहब एक चीज और जानना चाहता हूँ, अब ये ऑफर फॉर सेल कंप्लीट होने के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से दिखेगा? कितना डीबीआईजी या फॉडलर के पास है, कितनी स्टेक आपकी फैमिली में रहेगी सर? तो हमारे पास about 22% stake after we are selling 2% from 24 point something we will go down to 22 point something. DBAG will sell about 20%, okay. So they will come down to about 30% odd. Public shareholding will increase to more than 50%. So that was one of the ideas that we also had, was to increase the public free float. There was lot of demand in the market, lot of people wanted to invest, but the low liquidity was affecting investors. And now with the high quality financial investors that we are bringing in, I think there will be robustness and stability in the price, and I believe that we will change the how the company is also perceived, because now institutional investors will also come in. परफेक्ट। पटेल साहब एक और सवाल है कि आप क्या इसकी प्राइसिंग फाइनल कर चुके हैं? जो रेस्पॉन्स आपको आया जो ऑफर फॉर सेल में परसों जो क्यूआईपी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए था और कल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए था, क्या प्राइसिंग फाइनल हुई है या फाइनल होना बाकी है सर? नहीं, प्राइसिंग तो इट्स ऑलरेडी बीन फाइनलाइज्ड. इट्स अराउंड द 3,500 rupee mark per equity share. Okay. Let me also just the people have also asked me a lot about why such a big discount. Please, you should also understand that at 3,500 it is still 72 times price to earnings of FY20 numbers. So it is a rich valuation. It is something that obviously we are happy with. New investors who also are going to come in, they also find it attractive because there is an upside possible from that price onwards. आई अप्रिशिएट सर। बहुत कम प्रमोटर्स ऐसे होते हैं जो ये कह पाए हैं चैनल पर कि वाकई में हमारा शेयर बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। ये कहने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए, नहीं तो लोगों को लगता है कि हमेशा हर प्रमोटर को ये लगता है कि मेरा शेयर बड़ा सस्ता है। एक और चीज़ जो सर मैं जानना चाहता हूँ, जो मेरे लिए भी मुश्किल थी और आपके ढेर सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी मुश्किल थी, जिस तरह से प्राइस आई, जिस तरह से आया, उसके बाद स्टॉक सर्किट लगा। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि 3500 रुपए में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्यों बेचें? क्या कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें
जो इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से, मैं आपसे पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ और पूछना चाहता हूँ, आपकी राय लेना चाहता हूँ। फंड मैनेजर्स को आमतौर पर पता होता है कि कंपनी क्या करने जा रही है, वो आपको फोन करके पूछ सकते हैं कि पटेल साहब आपका क्या इरादा है, इतना बड़ा ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। और जाहिर सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में फंड्स मन बना लेंगे कि आपने ऑफर फॉर सेल आज अनाउंस किया और कल सारे फंड तैयार हैं। आपने रोड शोज भी किए होंगे, उन्हें बताया भी होगा हम ऐसा करने जा रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को ये जानकारी मिलती नहीं है। अगर रिटेल को भी पता होता तो शायद वो ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर होते, 6,000, 5,500, 5,000 में शेयर ना लेते, या कम से कम 3500 में जरूर ले पाते, क्योंकि कल तक हम भी मन नहीं बना पाए कि वापस से आपका शेयर 3500 में लोगों को रिकमेंड करें या न करें। तो क्या आपको लगता है कि देश में एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जब आप जैसी बढ़िया कंपनियां किसी तरह का बड़ा ऐलान करें तो उसकी जानकारी रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ठीक उसी समय पर और उसी तरह से मिले जैसी बड़े फंड मैनेजर्स को मिलती है? Yes, it's a good question, Singhvi Saab. I think the mechanism that is currently there, I think it's a global practice. This is how normally capital is raised. So, I think also for the retail investors, I think it is also important to, join investor calls. हमारे जो investor calls रहते हैं, हम लोग each quarter करते हैं. We are very transparent and open, but obviously because of some of these events being price sensitive, you have to maintain very strict confidence and things like that. So I think that's something that we cannot change. We have to be very, very, from a standpoint of being legally sound, we need to be very careful in terms of what disclosures we make, what kind of information is shared in the market. And, as I also mentioned yesterday to somebody else, we have been in this business for 60 years. 60 years as promoters. Our track record has always been very, very clean and exemplary. We don't want to change that. We want to create wealth for everybody. So the idea is not to lose, integrity and ethics are very important to us. So in spite of all the negative news that has been going on for the last few days, we have not reacted, but, we have created value. And when we have created value, like you said, over the last 5 years, everybody was happy. But they should also put the same kind of trust and faith in the management, because going forward, we will create value again. एब्सोल्युटली। और पटेल साहब, हम खुद आपकी कंपनी की बेहद रेस्पेक्ट करते हैं और मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ, आपको कहने के लिए आपके फेस पर नहीं कह रहा, क्योंकि मेरी आदत ऐसी कि जो मुझे अच्छा लगता है वो भी मैं मुंह पे बोलता हूँ, खराब लगता है तो भी मुंह पे बोलता हूँ। एक और सवाल आप जाएं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि आपने भी देखा सुना होगा और हमने चैनल पे भी कवर किया था कि ऑफर फॉर सेल आने के ठीक 3 दिन पहले लगातार सिक्योरिटीज लेंडिंग बोरोइंग मैकेनिज्म में शेयर बोरो किए गए। उसके बाद स्टॉक में वॉल्यूम्स काफ़ी हुए, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम हुए। तो एक बाजार में कई सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये क्वेश्चन है, सवाल है कि क्या किसी को पहले से ये जानकारी थी, उन्होंने बोरो किया? क्योंकि आपका शेयर लिक्विड तो नहीं होता था, अब लिक्विड होगा इस ऑफर फॉर सेल के बाद डेफिनेटली। जब इनलिक्विड स्टॉक है तो कौन बोरो कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्यों पहले बेच रहा है? और जाहिर सी बात है जब बेचा तब से आज 3 सर्किट तो लग चुके हैं। तो क्या कुछ इस बारे में आप तक कोई सवाल पूछे गए हैं, किसी ने आपसे पूछा है, क्या कोई आपको जानकारी कि ये क्या हुआ है? तो मेरे ख्याल से आई हैव आल्सो रेड अबाउट इट. अगेन आई वांट टू रीअश्योर यू एंड योर व्यूअर्स दैट फ्रॉम आवर साइड देयर विल नेवर बी एनी काइंड ऑफ इंस्टेंस वेयर यू कैन क्वेश्चन आवर the ethics and integrity. तो उसमें तो कुछ सवाल ही नहीं है. And we have so much to lose when we are doing a global acquisitions, when we are bringing in high quality investors. Why would we jeopardize all of this and risk it for something so small? So I would just recommend that whoever is going to probe this, somebody should probe this and find out and get to the bottom of this. But from our side, again, there is absolutely no question. Something like this is something that we will never do, and we have not done as well. So I am not going to really comment on this. But from our side, there is 100% integrity and ethics, like I mentioned to you earlier. वंडरफुल पटेल साहब, और आपकी ये बात सुनने के बाद आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए हमारा रेस्पेक्ट और बढ़ता है। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये एक बड़ा मेरे ख्याल से इवेंट था कंपनी के लिए कि इतनी बड़ी स्टेक बिकनी थी, बिक गई। अब ये सब कुछ सेटल हो चुका है। आई एम श्योर जो हमारा भरोसा आप पर है, आपकी कंपनी पर है, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस पर है, जिसके दम पर हमने भी कई बार आपके स्टॉक को इन्वेस्टर्स को रिकमेंड किया है, वैसी दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आगे आएगी। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाल कर बात की। कई बार ये होता है कि मैनेजमेंट बात नहीं करना चाहते हैं। आई विश कि आप ये बात 2 दिन पहले करते हैं तो शायद और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को फायदा होता, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स मन बना पाते हैं
ऑफर फॉर सेल में 3500 रुपए में सब्सक्राइब करने का, बट ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। आपने अब भी बात की पटेल साहब, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। जी सर। Thank you, sir. Singhvi sir, just one last point is that we will be holding an investor call shortly as well. So if people want to log on and ask more questions, we'll be more than happy to answer all the questions that people have. डेफिनेटली पटेल साहब, वैसे तो आपके मेरे इंटरव्यू के बाद शायद ही कोई सवाल बचे